Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. As you are aware of the fact that the last video lecture was about the introduction of multiplication of algebraic expressions. I mean to say that in the last video lecture we come to know how to evaluate the product of two algebraic expressions. As polynomials are special type of algebraic expressions in which the power of the variable or variables containing in all the terms are non-negative integers or whole numbers. Therefore, we can say that last video lecture was about to find the product of two polynomials. It is a matter of fact that polynomials, depending upon the number of terms they contain, are being divided into different categories as monomials, binomials, trinomials, so on and so forth, depending upon whether a given polynomial contains 1, 2, 3, 4 digest terms. Okay, so we can say that in the last video lecture we are now capable, we have actually studied how to do the multiplication or how to evaluate the multiplication of monomial with monomial, monomial with binomial, monomial with trinomial, binomial with binomial, binomial with trinomial, or trinomial with trinomial, in general polynomial with polynomial. As I told you there that whether any polynomial, whether monomial, whether binomial, whether trinomial, okay, all the polynomials are actually composed of different terms. If we focus on a particular term of a polynomial, if you have the monomial, you have to focus on it as single term. If you have the binomial, you have to focus on it as two terms. If you have the trinomial, you have to focus on it as three terms. If you focus on a particular term of any polynomial, that very term is actually composed of two parts. I told you that. Okay, I told you that every term of the polynomial is actually composed of two parts. One is it is numerical part, and another one is it is algebraic part. I mean to say that these two factors actually make up term. Okay. So while evaluating the product of two monomials, what we do, we're actually taking the product of their numerical parts separately and product of their algebraic parts separately, and we are associating these two products multiplicatively. The resultant product is actually our required product. Okay, the resultant expression that we find by associating the product of numerical parts and algebraic parts separately, okay, that is actually the result of two, that is actually the product of two monomials. While finding the product of monomial with a binomial, I told you that all the variables that there are involved in the polynomials have their nature rational numbers. I mean to say that variables are nothing, they are unknown rational numbers. And we know that distributive property holds good in case of rational numbers. If we have three rational numbers a, b, and c, we can distribute the multiplication of one rational number over the addition of two rational numbers. I mean to say that if I have the expression like this, a into b plus c, b plus c, I can distribute a multiplicatively over b plus I can write down c. I can distribute a multiplicatively over b as well as c. If we have two monomials, if we have a monomial, we want to find out its product with a binomial, just like 2x and x plus y. What about this 2x? What about x and y? They are actually unknown rational numbers. Can't we use the distributive property in case of polynomials as well? Yes, we can apply it, because we can apply the distributive property of multiplication or addition of rational numbers. Similarly, we can apply the distributive property of multiplication of polynomials over the addition or subtraction of polynomials. I mean to say that I can find out the product of this monomial with this binomial as like this. I can first of all distribute 2x with x multiplicatively and then take the addition middle. Okay, after that I will distribute once again 2x with y multiplicatively. What about this? This is actually the product of two monomials, and we know that while evaluating this we have to take the product of their numerical parts separately, take the product of their algebraic parts separately, and associating the resultant product as multiplicatively, and that will be actually the product of its first term. Similarly, we can do the same thing for finding the product of 2x and y, these two monomials. ठीक, तो इसका मतलब this was all together that we have read in the last video lecture. In today's video lecture, our main motive will be exercise 9.2. So let us begin our video lecture with the question number first of exercise 9.2. We will try our best to finish this whole exercise in this very video lecture. So please cooperate me. Okay. What is being asked to us in question number first? Find the product of the following pair of monomials.
यानी कि हमें कुछ पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स दिए गए हैं और जिनका हमें प्रोडक्ट बेटा पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को करने के लिए फॉर्मेट एक जैसा होगा, तो एक पार्ट जैसे आप करोगे वैसे ही आपको सभी पार्ट्स को करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, गिवन पॉलिनोमियल्स आर, गिवन पॉलिनोमियल्स आर, यहाँ आप लिख सकते हो मोनोमियल्स, बिकॉज मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, आर आप लिख सकते हो मोनोमियल्स। ठीक है, मसला नहीं है। और कौन कौन सा है, 1 is 4, 4 and 7p, 4, 7p वहां पे लिखा है, आप लिखोगे यहाँ पे 4 and 7p। हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। नाउ देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट इनका है 4 into 7p, वो कितना आएगा सर, जो 4 है ना बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। इसमें असल में वेरिएबल कहाँ से आता है, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखूंगा वेरिएबल हम लिख सकते हैं, बिकॉज 4 को हम लिख सकते हैं ना 4 into 1, फिर मैंने बताया था 4 into x power 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो होता है 4, और जो इसका अलजेब्रिक पार्ट होता है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा 1 बेटा, उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा 1। सो व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ 7p, वो 7 है और अलजेब्रिक पार्ट इसका p है। अब जरा बताइए, हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को सेपरेटली क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 4 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 7 के साथ, 4 7 28। अब क्या यहाँ पे अलजेब्रिक पार्ट p है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक पार्ट कौन होता है, 1 होता है, p1 जरा आएगा p, इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिवली एसोसिएट करेंगे, तो डायरेक्ट से हम लिख सकते हैं 28p। ठीक है बेटा, यानी कि जब प्रोडक्ट ऑफ द numerical parts of these two monomials is 28 and the product of their algebraic parts is p. Now I have associated the product of their numerical part with the product of their algebraic part multiplicatively, and this multiplication is sometimes being dropped. As a result we can write down it as 28p as I have shown here this product. Okay, so अब हम बेटा इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, पार्ट नंबर 7 भी आप सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है, तो उसके लिए ये चीज रफ और ये चीज रफ करेंगे। क्या लिखेंगे, हियर द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, आई मीन टू से दैट हियर द गिवन मोनोमियल्स आर, मोनोमियल्स ही आप लिखना बेटा, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू राइट डाउन मोनोमियल्स, दैट इज -4p and 7p क्यूब, -4p and 7p क्यूब। ओके, now their product is, that is -4p, we have to multiply it with 7p क्यूब। क्या करेंगे बेटा, what about the numerical part of -4p, sir that is -4 along with the sign, negative sign। और जरा बताइए जो दूसरा मोनोमियल है 7p क्यू, इसका न्यूमेरिकल पार्ट कौन है, 7 सर 7 है, 7 4 जरा आएगा -28, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमेरिकल पार्ट इज -28। अब हम इस प्रोडक्ट को किसके साथ जोड़ेंगे सर, इन दोनों मोनोमियल्स के अलजेब्रिक पार्ट्स के प्रोडक्ट के साथ। जरा बताओ यहाँ पे अलजेब्रिक पार्ट क्या है सर, p है, और यहाँ पे क्या है p इंटू क्यू, यानी कि हमें इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा अलजेब्रिक पार्ट्स का वो आएगा p इंटू p क्यू, p इंटू p दैट विल बी p स्क्वायर इंटू क्यू, बिकॉज बेसिस आर सेम, इसका पावर 1, तो p इज पावर 1 + 1 यानी कि p स्क्वायर आएगा। तो मसला नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बेटा, p स्क्वायर क्यू। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दियर सर numerical parts, and p square q is the product of the algebraic parts of these two monomials. When I associate both of these products multiplicatively, I need not to write down this multiplication sign. मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 28 - 28 p square q. Okay, so the required product will be -28 p square q. So this is the product of the second pair of monomials. So now we will do it as third part को करने के लिए बेटा क्या चीज रफ करेंगे, ये चीज रफ करेंगे, ये चीज और ये चीज रफ करेंगे, बाकी सब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप बहुत बुद्धिमान हो तो आपको बेटा समझ में आएगा। ये here the given pair of monomials are, या here the given monomials are, polynomials नहीं लिखना, monomials लिखना। ठीक है, 4p cube and second monomial is -3p, -3p and -3p. Now their product कितना आएगा सर, 4p क्यूब मल्टीपल -3p। अब जरा बताइए बेटा इन दोनों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए सर हमें तो पता है ना
इनके अलजेब्रिक पार्ट्स का प्रोडक्ट अलग से ले लेंगे और इनके न्यूमेरिकल पार्ट्स का प्रोडक्ट अलग से ले लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखेंगे। जरा बताइए यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 4p³ में। सर 4p³ में न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब इस टर्म का कोफिशिएंट वो क्या है, कोफिशिएंट से हमारा मतलब न्यूमेरिकल पार्ट जो कि 4 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट क्या है -3। 4 3 कितना आएगा सर -12 आएगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस दैट विल बी -12। ओके, नाउ इनका अलजेब्रिक पार्ट क्या है, पहले मोनोमियल का अलजेब्रिक पार्ट है p³ और दूसरे मोनोमियल का अलजेब्रिक पार्ट है p। आई कैन राइट डाउन इट एज p⁻1 बिकॉज ये p⁻0 नहीं होगा, वरना एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 ये 1 होता है, क्योंकि ये 1 बेटा नहीं है, इसका मतलब इसका पावर है बेटा 1। तो बीच आर सेम पावर्स आर एडेड, वो आएगा 3p⁻3 + 1 दैट विल बी इक्वल टू p⁻4। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस -12 को हम मल्टीप्लिकेटिवली एसोसिएट करेंगे किसके साथ, p⁻4 के साथ। दिस द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स, दिस द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक पार्ट्स। व्हेन वी एसोसिएट देम मल्टीप्लिकेटिवली, we are actually dropping this multiplication sign, we are writing down this product as -12 p⁻4। it बेटा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइन नहीं लिखी, लेकिन जब प्रोडक्ट साइन नहीं लिखी जाती इसका मतलब ही होता है कि प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल x × y हम xy लिखते रहा, असल में x और y कैसे जुड़े हुए हैं अलजेब्रिकली एक दूसरे के साथ, सर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चले लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा -12 p⁻4। तो है ना आसान, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए ये चीज मैं रब करूंगा और मैं देखूंगा कि और क्या हमें रब करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रेस्पेक्टिवली। हमारे यहाँ बेटा कुछ रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है इन टर्म्स ऑफ मोनोमियल, इन टर्म्स ऑफ सम अननोन नंबर्स। ठीक है बेटा, हमें उन रेक्टेंगल्स के पूछा जाता है कि एरियाज निकालो। बहुत सारे रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस जो दी गई है यहाँ पे, डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ किसकी, रेक्टेंगल्स की इन टर्म्स ऑफ मोनोमियल्स दी गई है। हमें बताना पड़ेगा उनका एरिया कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो मैंने बताया था ना, मोटिव क्या है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों इवैल्यूएट करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें मदद करेगा व्हाइल फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स और प्लेन क्लोज्ड फिगर्स, व्हाइल फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर्स लाइक क्यूबाइड और क्यूब। एट दैट टाइम वी रिक्वायर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वरना जरूरत क्या थी इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ने की। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे here the dimensions of the here the dimensions dimensions of here the dimensions of rectangle R। ठीक है बेटा, L इक्वल टू, L का मतलब पहला मोनोमियल। देखिए बेटा यहाँ पे जो डायमेंशन पहले रेक्टेंगल के लिए दी गई है वो इन टर्म्स ऑफ ऐसे ये ऑर्डर पेयर दिया गया है P, Q। इसका मतलब लेंथ P है और ब्रेड्थ कितने है, Q है। तो हम वही लिखेंगे हियर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल R। ठीक है, L इक्वल टू P एंड B इक्वल टू B is what whatever the value of B that is Q। ठीक है, so the area of rectangle will be, will be क्या होगा एरिया, सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, और क्या। चलिए अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो कैसे करेंगे सर, वो होगा L इंटू बी विच विल बी इक्वल टू P इंटू Q। अब इन दोनों मोनोमियल्स का क्या करना है मैंने, सर प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पे बताइए अलजेब्रिक न्यूमेरिकल पार्ट क्या है P का, सर 1 है। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है Q का, सर 1 है। 1 सर आएगा 1। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट इनका 1 है और अलजेब्रिक पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा सर, P इंटू Q होगा, वो आएगा PQ मल्टीपल बाय PQ। 1 is the product of the numerical parts of these two monomials and PQ is the product of their algebraic parts। मैंने associate these two product as multiplicatively। देखो बेटा ये जो प्रोडक्ट 1 होता है ना बेटा, ये हमेशा इम्प्लाइड होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे PQ। 1 इंटू एक्स कभी लिखा जाता है 1 इंटू एक्स, ऐसे नहीं, उसको लिखा जाता है x। x 1 x आएगा, P इंटू Q
into 1 that will be PQ। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा सर PQ, लेकिन क्या लिखेंगे बिकॉज इट इज एरिया, हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब अगर P सेंटीमीटर में होगा, Q भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर हम लिखेंगे। यूनिट्स का मतलब जो भी आपने यूनिट्स इस्तेमाल की होगी। अगर ये P मीटर में होगा, लेंथ मीटर में होगी, ब्रेड्थ मीटर में होगी, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर मीटर या तो मीटर स्क्वायर। अगर ये किलोमीटर में होगा, ये भी किलोमीटर में होगा, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर किलोमीटर, है ना आसान। तो ये यूनिट जरूर लिखना है। ऑल्दो कि अगर पीछे आपके इनके आंसर्स में ये स्क्वायर यूनिट नहीं दिया गया है तो लेकिन बेटा आप लिखोगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, तो हम ना क्या करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं रब करते हैं। क्या करेंगे, जो चीजें चेंज होने वाली है दूसरे पार्ट में तो वही चीजें रब करेंगे। हियर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर। चलिए इसका दूसरा पार्ट ही करते हैं। लेंथ है बेटा 10 m, लेंथ है बेटा 10 m, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा था ये। और इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज 5n, ठीक है। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो आएगा 10 m मल्टीपल बाय 5n, आएगा कि नहीं आएगा। फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, इसीलिए तो करना था, एरिया निकालने के लिए हमें मोनोमियल्स को अपने साथ में एक दूसरे के साथ में प्रोडक्ट के थ्रू रिलेट करना पड़ता है। चलिए अब हम उनमें से नहीं कि जिनको नहीं आता है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स निकालना, हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर अलजेब्रिक न्यूमेरिकल पार्ट्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 10, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल पार्ट 5, 10 5 जाएगा 50, और इनका प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक पार्ट्स क्या होगा mn, तो रिलेट करेंगे 50 के साथ, तो 50 mn स्क्वायर यूनिट्स आएगा इसका एरिया, ठीक है। चलिए आते हैं एक और पार्ट की तरफ। चलिए मैं इसका अब लास्ट वाला पार्ट करने वाला हूं उसके लिए। तो ये आप बेटा आई एम सपोज दैट कि यू आर राइटिंग दीज ऑल दीज थिंग्स ऑन योर नोटबुक, ठीक है बेटा, ये पूरा लिखना। अभी मैं इसको रब करूंगा एंड आई विल आल्सो रब दिस वेरी थिंग। सर जो चीजें चेंज हो जाएगी वही रब करेंगे, पूरा रब करने की वो जरूरत नहीं है। लास्ट वाला पार्ट, लेंथ क्या है बेटा, दैट इज 3mn, लेंथ है 3mn हमारी इस रेक्टेंगल की जो लास्ट में दिया गया है, और उसकी जो विड्थ दी गई है उनकी ब्रेड्थ 4np दिया गया है, 4np। तो हम क्या लिखेंगे, सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी L इंटू बी इज इक्वल टू कितना आएगा सर, L के बदले अपना वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। चलिए करते हैं इंट्रोड्यूस, ये डरेगा नहीं, 3mn, ठीक है बेटा, मल्टीपल करना पड़ेगा किसके साथ, 4np के साथ, 4np के साथ। बेटा क्या आप डरोगे प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में, नहीं डरेंगे, बिकॉज ये तो मोनोमियल, हमें पता है दो मोनोमियल्स को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट मीन न्यूमेरिकल पार्ट 3 and 4, 3 4s that will be 12, okay, then we have to multiply the algebraic part with the algebraic part। देखिए बेटा algebraic part पहले मोनोमियल में mn है और दूसरे मोनोमियल में np है। देखिए बेटा जो वेरिएबल अलग अलग है पहले मैं उनको लिखना चाहूंगा, पहले मैं m को लिखूंगा फिर p को लिखूंगा। m और p है ना, mp ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है इनके दरमियान प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हम ये मल्टीप्लिकेशन साइन हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे n है, n का मतलब n पावर 1, यहाँ पे क्या है n पावर 1, n पावर 1 मल्टीपल बाय n पावर 1, वो कितना आएगा n पावर, बेसिस पावर आर एडेड, n प्लस n पावर 1 प्लस 1 दैट इज n स्क्वायर। अब हम इस प्रोडक्ट असल में इन दोनों मोनोमियल्स के जो अलजेब्रिक पार्ट्स है उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज mp n स्क्वायर। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हम बहुत बुद्धिमान है, क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को लिखेंगे, इन वेरिएबल्स को लिखेंगे इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले m फिर है m n स्क्वायर p लिखेंगे ऐसे, यानी कि यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको 12 के साथ रिलेट करेंगे। जब 12 के साथ रिलेट करेंगे तो लिखना कैसे पड़ेगा, 12m n स्क्वायर p, ठीक है बेटा। ये जो m n स्क्वायर p है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर अलजेब्रिक पार्ट्स। जब मैं इसको 12 के साथ मल्टीप्लिकेटिवली रिलेट करूंगा, बोलो प्रोडक्ट दिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिखाई जाती है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m n स्क्वायर p, लेकिन बेटा क्या सर स्क्वायर यूनिट, ये तो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखे, ठीक है बेटा। ये तो हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। अब है तीसरा क्वेश्चन।